हाँ, तो यहाँ से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ से हार्डवेयर है, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर हम लोग का सेकंड चैप्टर है। तो ये हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसके बारे में हार्डवेयर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ठीक है, तो हार्डवेयर, एज यू नो, the hardware is the physical and the tangible part of our computer system. Physical and tangible means we can touch and see, like this mouse, like this keyboard. These are the hardware parts. ठीक है, तो इसमें आपका हार्डवेयर पार्ट्स में बहुत सारे डिवाइसेस आएंगे जो भी कंप्यूटर में हो या कंप्यूटर से जुड़े हुए हों। ठीक है, कंप्यूटर में भी हो सकते हैं और कंप्यूटर से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर वाले पार्ट्स भी जो टच किए जा सकते हैं, जो फील किए जा सकते हैं, वो हार्डवेयर हैं। जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हों, जैसे मैं यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, कैमरा, प्रिंटर और स्कैनर और मॉनिटर, इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल लिखा हुआ है कि क्या भी हम लोग कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जैसा मैं आपको यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो पहला ही है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपके कंप्यूटर में जो पूरे हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको मेनली चार भागों में डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक है मेमोरी यूनिट, एक है इनपुट डिवाइस और एक है आउटपुट डिवाइस। दीज आर द फोर पार्ट्स ऑफ मेन फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेस इसमें आएंगे या जितने भी चीजें आएंगी, वो सारी चीजें इन्हीं चार में से किसी न किसी में होंगी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, Yes, sir. तो Yes, sir. ओके, वॉइस इज क्लियर? ओके Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. देन सबसे पहले हम वी टॉक अबाउट द सीपीयू। तो स्टूडेंट, एज यू नो दैट in our life, in our human body, the main part is the brain. ठीक है, through which we can think, through which we can decide, through which we can do any work. मतलब कि हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हमारे हाथ पैर को या जिसको भी, वो कहाँ से मिलते हैं? ब्रेन से मिलते हैं। Like that, in our computer system, the main part is the brain of the computer, which is known as the central processing unit, which is the brain of computer system. ठीक है, अब इसमें बच्चों मैं आपको एक दिखाऊंगा कि इसमें हम लोग कैसे, ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लोग, हम कंप्यूटर जो है हमारा, जो सीपीयू है, वो कैसे इसको ब्रेन को काम करता है, ब्रेन की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, उसको पहले आप लोग वॉच करिए, इसको ऑब्जर्व करिए। And made it real? देखिए, आवाज आ रही है बच्चों? एक मिनट। Yes, sir. Do Ari. you remember when you Okay. first realized that your computer was more than just a monitor and keyboard? That between the mouse click and the video playing, there was something that captured your attention, understood it, and made it real? What is that something? Is it gremlins? Let's imagine that we can shrink down to the size of an electron and inject ourselves into a click of a mouse. If you took your mouse apart, you'd see that it's really a very simple machine. It has a couple buttons and a system for detecting motion and distance. You might have an optical mouse that makes these measurements with lights and sensors, but older ones did this with a hard rubber ball and some plastic wheels. Same concept. When you click the button on your mouse, it sends a message to the computer with information about its position. When your mouse click is received, it's handled by the basic input-output subsystem. This subsystem acts like the eyes and ears and mouth and hands of the computer. Basically, it provides a way for the computer to interact with its environment. But it also acts like a buffer to keep the CPU from being overwhelmed by distractions. In this case, the I/O subsystem decides that your mouse click is pretty important, so it generates an interrupt to the CPU. Hey CPU, got a click here. The CPU, or Central Processing Unit, is the brains of the whole computer. Just like your brain doesn't take up your whole body, the CPU doesn't take up the whole computer, but it runs the show all the same. And the CPU's job, its whole job, is fetching instructions from memory and executing them. So while you're typing, maybe really fast, like 60 words a minute, the CPU is fetching and executing billions of instructions a second. Yes, billions, every second. Instructions to move your mouse around on the screen, to run that clock widget on your desktop, play your internet radio,
manage the files you're editing on the hard drive, and much, much more. Your computer's CPU is one heck of a multitasker. But oh my gosh, there's a very important mouse click coming through now. Let's drop everything now and deal with that. There are programs for everything that the CPU does. A special program for the mouse, for the clock widget, for the internet radio, and for dealing with letters sent by the keyboard. Each program was initially written by a human in a human-readable programming language like Java, C++, or Python. But human programs take up a lot of space and contain a lot of unnecessary information to a computer, so they're compiled and made smaller and stored in bits of ones and zeros in memory. The CPU realizes that it needs instructions for how to deal with this mouse click, so it looks up the address for the mouse program and sends a request to the memory subsystem for instructions stored there. Each instruction in the mouse device driver is duly fetched and executed. And that's not nearly the end of the story. Because the CPU learns that the mouse was clicked when the cursor was over a picture of a button on the monitor screen, and so the CPU asks memory for the monitor program to find out what that button is. And then the CPU has to ask memory for the program for the button, which means that the CPU needs the monitor program again to show the video associated with the button, and so it goes. And let's just say that there are a lot of programs involved before you even see the button on the screen light up when you clicked it. So just the simple task of clicking your mouse means visiting all of the critical components of your computer's architecture. Peripherals, the basic input-output system, the CPU, programs, and memory, and not one gremlin. Then students, ये जो था आपका ये वर्किंग था, सबको दिखा ये वर्किंग क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें इसने ये समझाया कि when we click a mouse on a simple thing on things matter means when we want to do some file opening process or want to click to play a video or anything, ठीक है, on the mouse click, then all these instructions how travels in the CPU. तो इसमें जो छोटी सी चीज के बारे में बताया कि एक छोटा सा काम करने में भी हम लोग कुछ भी टाइपिंग करते हैं तो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको सीपीयू को एक बार में उसको मिलते हैं। तो ये सीपीयू कैसे प्रोसेस करता है, तो इसको मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी समझाया था कि सीपीयू में अंडर प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसको आप देखे भी होंगे, फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हमारा जो सीपीयू होता है उसमें हमारा 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एएलयू, सीयू और एमयू। अब ये जो एमयू है ये रजिस्टर्स होते हैं यानी मेमोरी यूनिट्स होती हैं, ये आपके सीपीयू के अंदर ही होती हैं, और ये जो होता है हमारा सीपीयू होता है टोटल, इसको सीपीयू बोलते हैं। इसके बाद जब इनपुट यूनिट से कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है तो हमारे डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है सीपीयू में सीयू, ये सीधा सीयू के पास आता है। फिर सीयू सेंड्स इट टू एएलयू, ठीक है, फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, and then ALU demands for memory to CU unit, then CU provides the MU, and then after processing the result will then pass to the CU and CU send it to the output unit। तो ऐसे हमारा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट यूनिट के जो हमारा जो भी आउटपुट यूनिट्स होती हैं उसके थ्रू हमारा जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होता है वो हमको बाहर मिल जाता है। अब इसमें बात करते हैं कि सीपीयू के बारे में बात हो गई, तो इसके बाद हमारी मेमोरी की बात आएगी। तो मेमोरी इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसे कि हम लोग कोई भी चीज को 2 प्रकार से सेव करते हैं, जैसे कि एक होता है कि टेम्पोरली मतलब कि थोड़े समय के लिए या कुछ समय के लिए जितने समय में जरूरत हो। दूसरा होता है कि परमानेंटली मतलब जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत हो, बाद में भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस बेसिस पे मेमोरी 2 प्रकार की होती है, पहला होता है ये प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है ये सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में जो होता है इसको हम लोग जनरली उसको मेन मेमोरी बोलते हैं, टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में हम जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं और परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। क्लियर? प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम नाम के 2 मेमोरीज आते हैं, ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। जो हमारा रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान दीजिएगा, वो हमारा एक टेम्पोररी मेमोरी है। टेम्पोररी मतलब उसमें डेटा कुछ समय के लिए होता है, यानी कि ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी होने के कारण से
इसमें जो भी डेटा होता है वो हमारे कंप्यूटर के पावर ऑफ के बाद नहीं शो होता है, मतलब वो इरेज हो जाता है। लेकिन हमारी जो रीड ओनली मेमोरी है, इसमें हमारा कुछ डेटा होता है जो कि सिस्टम के बूटिंग के लिए जरूरी होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए जरूरी होता है। ये हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है, और ये जो होता है हमारा वोलाटाइल मेमोरी नहीं है। इसको ध्यान देंगे कि प्राइमरी मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी है, लेकिन रैम जो है वो वोलाटाइल है और रोम जो है वो वोलाटाइल नहीं है। इसमें प्री रिटेन, आपको मैं पहले बताया हूं, इसमें प्री रिटेन हमारे पास प्रोग्राम्स रहते हैं। उन प्री रिटेन प्रोग्राम को हम फर्मवेयर बोलते हैं, FIRMWARE। इन ये फर्मवेयर क्या क्या काम करता है कि जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है, यानी कि ऑन ऑन होता है, तो इसमें जो भी जरूरी फाइल्स होती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो इसमें होती हैं। इसके बाद हमारा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस है। सेकेंडरी मेमोरी में वो सारी मेमोरी होती है जिसमें कि डेटा हमारा परमानेंट से होता है, जिसमें कि हमारा हार्ड डिस्क है, जैसे कि हमारे फ्लॉपी ड्राइव्स है, मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारा CD ड्राइव है, DVD ड्राइव है, और हमारा पेन ड्राइव है। मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड जो हमारे मोबाइल्स में लगते हैं, चिप, वो भी हैं। वो सारे हमारे इसमें आएंगे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में। इसके बाद बच्चों है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो सारी डिवाइसेस हैं जिससे कि हम कंप्यूटर में डेटा को इन कर सकते हैं, मतलब वो चाहे जिस प्रकार से डेटा इन हो रहा हो, फोटो के फॉर्म में हो, साउंड के फॉर्म में हो, टाइप्ड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में अगर हम कंप्यूटर में डेटा इन कर रहे हैं तो वो इनपुट यूनिट के ही थ्रू होगा, और किसी भी फॉर्म में डेटा हम बाहर ले रहे हैं कंप्यूटर से तो वो आउटपुट यूनिट के हेल्प से ही होगा। तो आउटपुट यूनिट के हेल्प से क्या हो सकता है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे कहां पे देख रहे हैं बच्चों, कहां पे देख रहे हैं, कोई बताएगा? सर अपने फोन या मॉनिटर की स्क्रीन पे। बिल्कुल, वेरी गुड। तो हम अपने डिस्प्ले कहां लिख रहे हैं, अपने फोन की स्क्रीन पे या मॉनिटर की स्क्रीन पे, दैट इज द आउटपुट यूनिट। अब इसी तरीके से आपको एक चीज मैं बता दूं कि व्हेन वी टेक द कॉपी ऑफ एनी मैटर, देन विच डिवाइस वी यूज, कौन सी डिवाइस यूज करते हैं अगर हमें किसी चीज की प्रिंटेड कॉपी चाहिए? प्रिंटर, वेरी गुड। तो प्रिंटर इज अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। मतलब हम जो ये देख रहे हैं, अगर हमें उसकी हार्ड कॉपी लेनी हो, अब यहाँ बच्चों एक वर्ड आ रहा है हार्ड कॉपी, तो इसको भी आप मेंशन कर लीजिए कि हार्ड कॉपी क्या मतलब होता है कि जब भी किसी चीज की प्रिंट फॉर्मेट में हम एक पेपर पे लेते हैं तो उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जब उसी चीज को हम कहीं मोबाइल पे देख रहे हो या PDF फॉर्मेट में या MS वर्ड फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में कंप्यूटर पे स्टोर हो, जिसको कि हम टच नहीं कर सकते, उसको हम केवल देख सकते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो सॉफ्ट कॉपी हो जाएगी। तो ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होती है। अब ये हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अब बच्चों यहाँ पे मेमोरी है। तो मेमोरी में मैंने जो भी आपको बताया उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी क्या है, ये वाला जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था, आपको याद होगा कि अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी में 3+5 देते हैं तो ये कैसे कैसे ये CPU में ट्रेवल करता है, मतलब ये सीधे कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, फिर देखेगा कि इसमें प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी कि ये फिर ALU के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर ये ALU के पास जाने के बाद फिर वापस से ये CU के पास आएगा क्योंकि इसको मेमोरी चाहिए, फिर ये मेमोरी यूनिट के पास आएगा MU के पास, फिर ये वापस से CU के पास जाएगा आफ्टर प्रोसेसिंग, और फिर इसका 8 इसका आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रेवल करता है। लेकिन इसमें ये समझने वाली बात ये है कि कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड द नंबर्स, मींस अल्फाबेट्स, नंबर्स, इंग्लिश लैंग्वेज। तो कंप्यूटर क्या समझता है, किसी को पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? सर बाइनरी वेरी गुड, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक, बाइनरी सबको याद होगी कि बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज में मैंने आपको ये बताया था कि बाइनरी लैंग्वेज में केवल 2 नंबर्स होते हैं, इसमें होता है 0 एंड 1। अब ये भी इसका भी एक रीजन है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज क्यों समझता है, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होता है 0 एंड 1, मतलब कि ऑन या ऑफ। तो 0 को बोलते हैं ऑफ और 1 को बोलते हैं ऑन। तो आपको इसमें ये इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी में तो ये मैं आपको बता चुका हूं। इसमें आपको एक चीज समझाया था मैंने कि इसमें जो है आपका जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें 2 प्रकार की कोडिंग होती है, उसको बोलते हैं ASCII कैरेक्टर्स और आपका मैं एक मिनट आपको दिखा रहा हूं बच्चों, आउटपुट डिवाइसेस है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ। इसके प्रकार इसमें 2 प्रकार की कोडिंग होती है, जिसमें आपका कौन सा होता है, एक होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये लिखा हुआ है, ठीक है मिला। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज,
और इसमें ये जो होता है, एक होता है यूनिकोड इनकोडिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों के थ्रू, जैसे हमारे पास ये कीबोर्ड है, तो इस कीबोर्ड में जितनी कीज हैं उनका कोई करस्पॉन्डिंग आस्की नंबर होगा। वो आस्की नंबर हमारा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, जिसको 0 एंड 1 के फॉर्म में जाएगा, और उस 0 एंड 1 के फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर वो सिग्नल जाएगा और उसको ही कंप्यूटर समझेगा। फिर कंप्यूटर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी उसका रिजल्टेंट होगा वापस उसको हमारे फॉर्म में बदलेगा, नहीं हाई लेवल लैंग्वेज में, और फिर उसको हमको शो करेगा। तो यहाँ पे इस चीज को, यहाँ पे यही चीज बताया हुआ है कि 0 जो होता है ये ऑफ वोल्टेज को शो करता है, और 1 जो होता है वो हाई वोल्टेज को शो करता है। और जो ये आपका 0 एंड 1 है उसको बिट बोलते हैं। इसको सब लोग इंपॉर्टेंटली इसको नोट कर लीजिए कि जो 0 एंड 1 है उसको हम बिट बोलते हैं, BIT। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। क्लियर हो गया सबको? बिट होता है और इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। इसको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर रहा हूं मैं, इसको आपको मालूम होगा, वो नहीं मालूम होगा तो उसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों ये मेमोरी यूनिट्स है। मेमोरी यूनिट्स क्या है? मेमोरी में सबसे सबसे स्मॉल मेमोरी यूनिट है 1 बिट, जिसको कि हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। फुल फॉर्म पूछता है इसका। बिट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि 0 या 1 को 1 बिट बोलते हैं। इसके बाद 8 बिट्स का मतलब 1 बाइट्स होता है। यहाँ पे एक और होता है जिसको मैंने आपको बताया था 4 बिट्स। 4 बिट्स होता है यहाँ पे। 4 बिट्स का होता है 1 निब्बल, 1 NIBBLE। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका अगर 1 KB की बात कर रहे हैं तो आपका 1 KB में कितना होता है, 1024 बाइट्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई मेरे पास 2000 बाइट्स के ऊपर का कोई डेटा है, तो आप क्या समझेंगे, भाई 2 KB का डेटा है इसका। ठीक, उसी तरीके से आपका यहाँ पे 1 MB, अब KB के बाद उसके बाद बड़ी कौन सी यूनिट होती है, MB। तो 1 MB में कितने KB, तो सब में 1024 KB। फिर MB से बड़ा क्या होता है, 1 GB। तो 1 GB में 1024 MB। तो अगर आपसे कोई कहता है 2000 MB की फाइल है हमारे पास, तो मतलब वो कितनी की फाइल है उसके पास, 2 GB की फाइल है। इज इट क्लियर नॉट? यस सर। ना, तो अब ओके, तो इस तरीके से हम अपना मेमोरी मेजरमेंट करते हैं। तो ये आपका एक मेमोरी चार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन मेमोरी में ये रोम और रैम के बारे में बता रहा है, तो जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया कि रैम और रोम क्या होता है। तो इसमें यहाँ पे बताया है कि रोम जो होता है, रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज्ड। ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज और राइट इनटू। मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी प्रोग्राम होता है जिसको फर्मवेयर बोलते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा राइट होता है। जनरली रोम मेंटेन कंटेन्स ए सेट ऑफ स्टार्टअप फंक्शन। जैसे मैंने बताया बूटिंग के समय जो नेसेसरी फाइल्स होती हैं उनको ये होल्ड कर सकता है। तो इसमें बूटिंग मतलब क्या होता है, BOOTING, जब कंप्यूटर हमारा ऑन होता है। What to do when the computer is turned on? The content of ROM remains stored even if power is turned off. तो मैंने आपको बताया कि ये वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। क्लियर ना? तो ये मतलब इसमें कंप्यूटर को बंद होने के बाद भी इसमें प्रोग्राम होल्ड होता है। इसके बाद बच्चों आती है बात रैंडम एक्सेस मेमोरी की। रैंडम एक्सेस मेमोरी आप पहले से जानते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारा वो इंटरनल मेमोरी होता है, जो कि इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जब हमारा प्रोग्राम जो है हमारा कंप्यूटर से पावर चला जाएगा तो वो हमारा मेमोरी क्लियर हो जाएगा। मतलब कि व्हेन द पावर इज लॉस्ट देन इट विल टर्न ऑफ, तो वो क्या होगा, उसका डेटा भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको समझना है बच्चों कि इसमें एडिशनली आपको क्या जानना है कि जब हम लोग कोई चीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि नाउ दिस टाइम वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू द जूम, तो अब ये जो डेटा है हमारा ये कहीं सेव तो हुआ नहीं। अगर हम इसको सेव करेंगे तब ये सेव होगा। जैसे कि अभी मैं इस क्लास को अगर रिकॉर्ड करके सेव कर दूं तो ये हमारे हार्ड डिस्क पे चला जाएगा। तो हार्ड डिस्क पे जाने का मतलब ये हमारा परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अभी ये कहाँ पे है, ये अभी रैंडम एक्सेस मेमोरी पे है। उसी तरीके से अगर मैंने अभी YouTube का वीडियो प्ले किया, YouTube का वीडियो कहाँ प्ले हुआ, मैंने उस वीडियो को सेव नहीं किया, तो कहाँ प्ले हुआ बच्चों, कोई बता सकता है? सर रैम में। रैम में। रैम। वेरी गुड, वेरी गुड। उसी तरीके से अगर हम MS वर्ड के फाइल की राइटिंग करते हैं, आपको मैं बता दूं, तो जब तक उसको हम सेव नहीं करेंगे तब तक वो रैम पे ही है। यानी कि अगर हम उस टाइप कर रहे हैं, मैं इसको अपनी क्लास में आपको करके दिखाऊंगा कि अगर हम उसको टाइप कर रहे हैं और हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो वो फिर फाइल हमको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम उसको टाइप करके उसको सेव कर दिए तो पूछेगा कि कहाँ सेव करना चाहते हैं और उसका नाम क्या है, देन वो आपका रैम से जाएगा हार्ड डिस्क पे। अदरवाइज वो रैम पे ही रहेगा, वो चला जाएगा, नहीं डिलीट हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपकी रैम की लिमिटेशन है। रैम की लिमिटेशन क्या है
कि लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी बिकॉज इट इज अ कॉस्टली मेमोरी, इसलिए ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी में तो लगाते नहीं। जैसे कि हम लोग अगर हार्ड डिस्क 1 TB का लगाएंगे तो रैम 4 GB 8 GB इस समय आ रहा है। वोलाटाइल इन नेचर है, मतलब दैट इज इट्स कंटेंट गेट रिमूव्ड व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। इसके बाद ये बच्चों सीपीयू है। सीपीयू में आपका रैम और रोम है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको रैम दिखाया भी था, ठीक है, आपको याद होगा। तो यहाँ मैं फिर दिखा दे रहा हूँ, देखिए मैं रखा भी Yes, हूँ sir. आपको दिखाने के लिए। ये रैम है, तो ये बच्चों को मैं दिखा देता हूँ कि ये रैम है। तो उसके उसी तरीके से यहाँ पे रोम भी दिया हुआ है, यहाँ पे सीपीयू भी दिया हुआ है। तो अब बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सीपीयू इज अ रेक्टेंगुलर चिप होता है ना, जैसे कि हम लोग कैबिनेट बॉक्स को जनरली बोल देते हैं दिस इज द सीपीयू, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट द सीपीयू इज द situated in the inside the cabinet box with on the motherboard। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? हमारे जो Yes. कंप्यूटर के अंदर जो बॉक्स होता है उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड मतलब सर्किट होता है जिसपे कि सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के आते हैं, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड, ग्रीन कलर का। वो मदरबोर्ड के ऊपर ये सीपीयू सिचुएटेड होता है, उसी के ऊपर रैम भी लगती है, जिसको मैंने आपको पिछली क्लास में आपको दिखाया था। अब आप देखिए यहाँ पे मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन है वो बहुत प्रकार से इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान देंगे खासतौर से। फुल फॉर्म ऑफ दिस रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। डेफिनेशन क्या है? रैम इज अ फॉर्म ऑफ the storage form of data storage that can be accessed randomly at any time in any order by the CPU। मतलब रैम रैंडम इसका नाम ही है, रैंडम मतलब किसी भी ऑर्डर में नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको मेमोरी के टाइम बताया था कि सीक्वेंशियल मेमोरी होती है, याद है, जो ऑडियो कैसेट वाली होती है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स करना पड़ता है, याद है कि नहीं? और हमारी जो Yes, sir. सीडी होती यस है सर। उसमें हम रैंडमली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी वो सीडी शो करेगा और उसमें रैंडम डेटा एक्सेस हो जाए। तो वही चीज बता रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी इज आल्सो फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज दैट जनरली स्टोर्स हार्डवायर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, that is the instruction stored as a form of circuits for the computer to start initially। मतलब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, जिसको बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, BOOTING, नोट कर लीजिएगा, उस समय उसको जो जरूरी इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं उसको रोम से मिलते हैं। उसके बाद क्या है? रैम कंटेंट्स कैन बी चेंज और अल्टर्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड। रैम का कंटेंट चेंज हो सकता है। रोम कंटेंट कैन नॉट बी इजीली अल्टर्ड और रीप्रोग्राम्ड। अल्टर मतलब मॉडिफाई, तो आपका रोम का कंटेंट मॉडिफाई आसानी से नहीं होगा। यूज RAM allows the computer to read data quickly to run applications। तो आपको जैसे मालूम है कि जो भी चीजें होती है वो सारे रैम पे ही होती है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। जैसे कि अगर आप कोई गेम भी प्ले कर रहे हैं बच्चों, तो भले ही गेम इंस्टॉल्ड है लेकिन आप देखेंगे पहले वो लोड होता है, देखेंगे नहीं सब लोग, लोडिंग होती है उसकी। तो वो लोडिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है? रैम पे होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बात? तो ये जो Yes, होता है sir. ये रैम पे होता है, उसके बाद ही आप गेम प्ले कर पाते हैं। तो वही बता रहा है कि वो रैम पे आपको जाता है। और रोम में होता है रोम स्टोर्स द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू इनिशियली बूट द कंप्यूटर और रीबूट द कंप्यूटर। तो रोम का तो बार बार यही बोल रहा है कि बूटिंग के समय यूज होने वाले प्रोग्राम्स उसमें होते हैं। सर हाँ बोलिए दिव्यांश। सर हम लोग अगर सर किसी विंडो का सर हम लोग को उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना है, और सर हम लोग विंडो यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, सर हम लोग कैसे कर सकते हैं ये? देखिए सबसे पहली बात समझिए कि हमारी जो वो जो हमारा रोम में होता है उसके विंडो। अंदर, हाँ बता रहे हैं, जो उसके अंदर रोम होता है उसके अंदर एक मेमोरी एड्रेस होता है। तो जब भी हम लोगों को कोई चीज इंस्टॉल करना होता है तो सबसे पहले उसकी जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो कहाँ से होती है ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप कोई हार्डवेयर वाला आएगा उससे आप देखिएगा कि उसमें जब वो बूटिंग करता है तो हमारी बूटिंग हार्ड डिस्क से लगी रहती है। हार्ड डिस्क से लगी रहती है इसका मतलब कि उसको बूटिंग इंस्ट्रक्शन हार्ड डिस्क से मिलता है पहले, जब हमारा विंडोज पहले से इंस्टॉल्ड है। तो वो जो हमारे कंप्यूटर में विंडोज 8 विंडोज 10 जो भी पड़ा हो तो वो पहले वहां पे चला जाता है और उसकी बूटिंग से वो प्रोसेस उठाता है। सुनाई दे रहा है सबको? तो यस सर। उसमें वो बूटिंग, तो वो क्या करता है, हार्डवेयर वाला क्या करता है कि बूटिंग ऑप्शन चेंज करता है पहली बार में। तो देखेंगे कि वो बायोस में जाएगा, जो भी आप लोग वो वीडियो एनिमेशन देखे थे उसमें बायोस की बात कर रहा था, वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बायोस BIOS। तो उसमें क्या होता है, बायोस में जाएगा वो कंप्यूटर के, और बायोस में जाके वो उसका बूटिंग ऑप्शन चेंज करेगा। बूटिंग ऑप्शन या तो वो CD DVD करेगा या तो बूटेबल पेन ड्राइव होती है। तो आप जानते हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव या CD सब DVD, बूटिंग ऑप्शन में क्या करेगा सर वो? या तो CD DVD ऑप्शन लगाएगा जहां पे हमारा CD की ड्राइव सब होती है। तो वहां पे बूटिंग यस ऑप्शन आता है कि हार्ड डिस्क से बूट करना है कि CD से बूट करना है कि पेन ड्राइव से बूट करना है, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। तो वहां अगर आपके पास विंडोज की CD है तो वो CD इंसर्ट कर देंगे और विंडोज का बूटिंग ऑप्शन CD ड्राइव का बूटिंग ऑप्शन लगा देंगे।
समझ में आया? तो हाँ नहीं यार का बोलिए। यस तो सर। सीडी जब हम सीडी ऑप्शन बूटिंग का लगा देंगे तो हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा कंप्यूटर जब रीस्टार्ट होगा तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उससे वो स्टार्ट नहीं होगा, वो किससे स्टार्ट होगा? जो सीडी ड्राइव लगी हुई है। नया सीडी ड्राइव में चूंकि हमारा विंडोज का नया ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है तो अब वो वहां से बूट होने से स्टार्ट करेगा और वो अब उसको नया इंस्टॉलेशन करने लगेगा। तो जो हमारा पुराना विंडोज था उसके ऊपर वो फ्रेश विंडोज ओवरराइट कर देगा। समझ में आया? तो इसी यस प्रकार से सर। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्टार्ट होता है। अगर हमारा जो है वो जो विंडोज है अगर वो हमारा पुराना वाला से करना है तो पुराना बूटिंग से उठाता है जो कि हमारे रोम में, अगर हम ये हार्ड ड्राइव सीडी रोम दे देते हैं या पेन ड्राइव बूटेबल आजकल बन रही है उससे दे देते हैं तो वहां से उठाने शुरू कर देता है, लेकिन उसको वहां से फिर से इंस्टॉलेशन शुरू कर देता है। यही प्रोसेस होता है। अब बच्चों सर इसके, हम लोग को अगर किसी पेन ड्राइव को बूटेबल करना है तो क्या करना होगा? हाँ उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है हमारा विंडोज का, आपके पास वो होना चाहिए आपके पास सेटअप, ठीक है, जो परचेज विंडो होता है उसको सेटअप होना चाहिए। उस सेटअप तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसमें सेलेक्ट करते हैं और बूटेबल पेन ड्राइव का ऑप्शन आता है वहां से हम लगा देते हैं। अब इसमें ओके। देखिए एक बच्चों ध्यान दीजिएगा एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली कि यह मैंने आपको अभी बताया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। स्मॉल प्रोग्राम्स कॉल्ड फर्मवेयर आर ऑफन स्टोर्ड इन द रोम। तो जो रोम में प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम फर्मवेयर बोलते हैं। इट विल बी आस्क्ड इन द वाइवा, ठीक है, and they can contain the instruction to computer you can use the performing some of the most basic operation required to the operate hardware devices। इसमें सारी कुछ चीजें जो होती हैं जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के लिए बूटिंग के लिए सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं और इससे क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर स्टार्टिंग के समय इस सॉफ्टवेयर को यूज करता है। अब इसमें बच्चों कंप्यूटर परफॉर्मेंस किस किस पे डिपेंड करती है? तो इसमें दो चीजों पे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। एक होता है सीपीयू, सीपीयू की स्पीड यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका प्रोसेसिंग कौन सा है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं i7 सब लोग यूज कर रहे हैं, i5 i7 i3 देख रहे हैं कि नहीं, उसमें भी कई सारे जनरेशन हैं। तो वो जितनी अच्छी स्पीड का सीपीयू होगा वो, और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जितनी अच्छी मेमोरी होगी और कैपेसिटी उसकी कितनी ज्यादा होगी हमारा ऑप्शन जो है हमारा कंप्यूटर उतना परफॉर्म करेगा। तो ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सीपीयू की स्पीड डिपेंड करती है। और हमारा दूसरा है मेमोरी साइज, मेमोरी साइज में आपकी रैम की साइज, रैम की साइज जितनी अच्छी होगी उतना हमारा कंप्यूटर परफॉर्म अच्छा करेगा। आजकल हमारा 4 GB 8 GB तक रैम आ रहा है, लोग लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी ओल्ड टाइम में जब हमारी सीपीयू का स्पीड भी कम था और हम लोग 512 MB का रैम लगाते थे, 1 GB का भी रैम लगाते थे। इसके बाद है तीसरी चीज है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर में कितने यूज हो रहे हैं। ज्यादा एप्लीकेशंस यूज होंगे तो ज्यादा लोड पड़ेगा सीपीयू पे, तो हमारे सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाएगा। अदरवाइज हमारा सिस्टम कम एप्लीकेशंस होंगे तो ज्यादा फास्ट यूज होगा। अब बच्चों इसमें अगली चीज है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में हमारी हार्ड डिस्क है। तो मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क में क्या होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क मैंने आपको ये फ्लॉपी ड्राइव दिखाई थी, फ्लॉपी ड्राइव मैंने आपको याद है कि नहीं आपको? तो इसमें मैंने ये आपको बताया था कि इसके अंदर एक फिल्म होती है, देखिए दिख रही है, Yes, sir. ये सर्कुलर मैग्नेटिक फिल्म है। ये सर्कुलर मैग्नेटिक फिल्म जो है इसी तरह की फिल्म हमारी हार्ड डिस्क में भी होती है। जो ये आपका हार्ड डिस्क है इसके अंदर भी इसी तरीके की, ठीक है, सर्कुलर फिल्म्स होंगी और इसमें जो है एक रीडिंग हेड लगा होगा और ये कई सारी होंगी। तो इस तरीके से हमारा जो ये सर्कुलर डिस्क है, ये आप फ्लॉपी डिस्क तो अभी आप नहीं आता होगा, अभी आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको दिखाया फ्लॉपी डिस्क है। ये पहले आती थी, अभी फ्लॉपी ड्राइव भी हमारे कंप्यूटर में नहीं अवेलेबल होती है, पुराने समय में फ्लॉपी ड्राइव से अवेलेबल होती थी। इसकी कैपेसिटी 1.44 MB होती थी। और ये देखिए आपका हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क के बारे में बता रहा है कि हार्ड डिस्क में क्या क्या होता है। तो ये देखिए रीडिंग राइटिंग हेड है और इसके ऊपर ये सर्कुलर डिस्क लगी है। तो सबसे पहले ये फ्लॉपी डिस्क के बारे में बता रहा है कि ये देखिए मैग्नेटिक डेटा है, इसको मैं आपको कई बार मेंशन कर चुका हूं, इसको आप याद रखिएगा, ये मैग्नेटिक डेटा है। मैग्नेटिक डेटा मतलब इसमें रीडिंग राइटिंग पॉसिबल है। और आपका ये जो हार्ड, ये सबसे रिलायबल ड्राइव्स हैं आज तक की हार्ड डिस्क। इसमें टेप ड्राइव भी एक होती है जो कि आप वीडियो और ऑडियो कैसेट के बारे में मैंने आपको बताया था। और ये ऑप्टिकल मीडिया है बच्चों, ये सीडी रोम और डीवीडी रोम क्या है? ऑप्टिकल मीडिया है। याद है कि नहीं आप लोगों को? ऑप्टिकल मीडिया है। ऑप्टिकल मतलब इसमें जो होता है इसमें रेज यानी कि लेजर बीम से हमारे जो डेटा होती है वो बर्न की जाती है। अब जब भी सुने होंगे आप सीडी बर्न की जा रही है, डीवीडी बर्न की जा रही है। बस आपको ध्यान रखना है कि आजकल बीआरडी आ गई है यानी कि ब्लू रे डिस्क, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है डीवीडी से, उसमें ब्लू लेजर यूज होता है। और जो हमारी नॉर्मल सीडी या डीवीडी होती है उसमें रेड लेजर यूज होता है, ठीक है। तो एक चीज ये हो गया बच्चों, ये आपका सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव के बारे में हम लोग बात किए थे। आज हम लोग ब्लू रे डिस्क के बारे में बात किए थे, आज हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं क्लाउड स्टोरेज।
क्लाउड स्टोरेज के बारे में क्या बात है? क्लाउड स्टोरेज कोई बता सकता है क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? ये डिवाइस नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डिवाइस नहीं। हाँ सर ये एक सर्विस होती है जिसपे सर और हम लोग अपना जो जितना भी डेटा रहता है हम लोग उसको ऑनलाइन स्टोर कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग फेसबुक पे अपना फोटो अपलोड करते हैं तो वो ऑनलाइन क्लाउड पे स्टोर हो जाता है। ऐसे ही और भी काफी सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के तरफ आता है वन ड्राइव, और दो चार और सर्विसेज भी सर होते वेरी हैं। नाइस, वेरी नाइस। इसमें क्या होता है बच्चों की एज द रिक्वायरमेंट, ठीक है, जनरेटेड, मतलब कि जैसे जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट वो जनरेट हो रही है ज्यादा मेमोरी की, तो हमारी मेमोरी जो होती है वो सॉर्टेड होती जा रही है। तो उसके लिए क्या हो गया, एक ऑप्शन आ गया है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मतलब कि हमारा जो डेटा है वो इंटरनेट पे कहीं पे जाके सेव हो जाए। लेकिन इंटरनेट पे कहीं पे जाके तो हम अपने डेटा सेव नहीं करेंगे, हम अपना एक अकाउंट बनाएंगे, जैसे ईमेल होता है। तो ये अकाउंट कहाँ बनाएंगे? देखिए सबसे फेमस है आजकल गूगल ड्राइव। वो जो आपका जीमेल वाला अकाउंट है उसी से काम करता है गूगल ड्राइव। आप देखे भी होंगे, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, एक मिनट। देखिए गूगल खुल गया, ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब इस पे आप क्लिक करिए, देखा? अब यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव दिख रहा है, ये दिख रहा है। Yes, sir. अब जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, Yes, sir. तो ये आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांग लेगा। देखिए खुल रहा है। अब यहाँ पे चूंकि मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड पड़ा होगा पहले से, इसलिए शो कर रहा है ये मेरा, ठीक है। अब नहीं तो ये हमारा ईमेल आईडी या पासवर्ड मांग लेता, फिर वहां से मैं अपना क्या कर सकता था, कोई भी चीज ओपन कर सकता था। हाँ बताइए, कोई हैंड रेज किया है? अच्छा, तो इससे हम इसमें एक और भी एग्जांपल इसका बच्चों, गूगल ड्राइव के अलावा ड्रॉप बॉक्स, एक ड्रॉप बॉक्स भी होता है जहां पे हम अपना कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको उसको किसी भी टाइम पे, जरूरी टाइम पे फेच कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा? अब इसमें कई Yes, सारी sir. डिवाइसेस है बच्चों। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक डिवाइस के बारे में मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ आज ही। ये हमारी एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है जिसको की बोलते हैं प्रिंटर। तो आप इसको नोट कर लें, प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब जहां पे टकराने से प्रिंटिंग होती है, और जहां पे नॉन इम्पैक्ट मतलब जहां पे कोई चीज टकराता नहीं है वहां प्रिंटिंग होती है। अब टकराने से क्या मतलब है? टकराने से मतलब ये है कि जहां पे प्रिंटिंग हेड और पेपर टकराता है, टच होता है, वहां पे उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और जहां पे पेपर और प्रिंटिंग हेड नहीं टच होता है उसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट सर टाइम हो गया है सर। अच्छा चलिए, तो ठीक है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक मिनट वेट करिए बच्चों। थैंक यू।